عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ خلیجی ممالک میں بھی اس وقت تبصرے زوروں پر ہے، ساری چیزیں بتاؤں گا۔ وہیں پر وزیر اعظم مودی کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے میں ایک شخص گرفتار ہونے کی خبریں آ رہی ہے، تو فیضان کی ضمانت کے خلاف داخل عرضی سپریم کورٹ میں مسترد کرتے ہوئے کورٹ نے پولیس کو جھٹکا دیا ہے۔ اختر الایمان جو بہار سے ہیں اور مجلس سے جن کا تعلق ہے، ہندوستان لفظ پر جب اعتراض کیا تو کس طرح ہنگامہ مچ گیا وہ بھی بتاؤں گا، اور شارجہ میں کس طرح سے ایک خاتون کو پولیس کی جانب سے مدد فراہم کی گئی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے ایک مسلم نوجوانوں پر گولی چلنے کا معاملہ جو آیا ہے وہ بھی تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ترکی اور دیگر کچھ اہم ترین خبریں ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے بات کر ہی لیتے ہیں علی گڑھ کی۔ تھانہ کارسی علاقے کے نگلا ملاح میں اس وقت افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا جب یہ 23 سالہ نوجوان کو نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا۔ مقتول نوجوان مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ واردات کو انجام دینے کے بعد بھاگ رہے حملہ آوروں میں سے موقع واردات پر موجود راہگیروں نے ایک حملہ آور کو پکڑ لیا اور اس کی زبردست پٹائی بھی کر دی۔ اطلاع پر پہنچی پولیس نے حملہ آور کو اپنی تحویل میں بھی لے کر علاج کے لیے ضلع اسپتال میں داخل کرایا۔ پولیس موقع سے پکڑے گئے حملہ آور سے پوچھ گچھ میں لگی ہوئی ہے۔ مقتول کے والد کی تحریر پر پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد تحقیق شروع کر دی ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین علی گڑھ میں کرائم کی واردات آ رہی ہے۔ جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں مرنے والے محمد سلمان کے سلسلے میں الگ الگ تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ یہ سیاسی دشمنی تھی یا ذاتی رنجش تھی، جو بھی تھی، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی گڑھ میں پیش آئی یہ تیسری واردات ہے جس کی وجہ سے عوام اس وقت ششدر ہیں، کیونکہ دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے، بالخصوص مسلمانوں میں آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے، کچھ رنجشوں کی وجہ سے اس طرح مسجد کے باہر بھی خون بہانے کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ یہ تمام خبریں سامنے آنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے اس وقت واردات اور دشمنی اور عداوتیں اس وقت مسلمانوں میں آپس میں پائی جا رہی ہیں۔ سیاسی دشمنی ہو یا سماجی دشمنی ہو یا پھر فکری اختلافات کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی واردات کا سامنے آنا اور ایک دوسرے کو اس طرح سے جو ہے رنجش کو لے کر کے مسجد کے سامنے نماز پڑھ کر کے نکلنے والے نوجوان پر وار کرنا اور اس کو قتل کر دینا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کی سنگینی اس وقت کیا بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت ایک اور خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے بولنے کی آزادی کی بات کرنے والے، ہر چیز کی بات کرنے والے، اس وقت ان لوگوں کو جو ہے دھچکا لگ جاتا ہے جب کوئی جو ہے پی ایم پر تبصرہ کر بیٹھتا ہے۔ اتر پردیش کی ضلع گونڈا کے کوڑیا تھانہ پولیس نے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے والے ایک ملزم کو پیر کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ علاقے کے پورے پاٹک گاؤں باشندہ آشوتوش تیواری نے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا۔ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے سائبر سیل کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر کے اسے متعلقہ دفعات میں جیل بھیج دیا ہے۔ تو اس طرح سے اس وقت حالات ہیں کہ جو ہے کس طرح سے اگر آپ جو ہے حکومت کی پالیسی کے خلاف، کسی شخص کی پالیسی کے خلاف، کسی ایم پی یا کسی سی ایم یا کسی پی ایم کے
खिलाफ अगर कुछ भी बोलते हैं, जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, लिखने की और बोलने की, वही लोग आपको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। बगैर नाज़रीन, आज के एक हंगामा खेज़ खबर मैं आप लोगों के सामने रखूं। बिलखुसूस इस वक्त हर जगह ये बहस छिड़ी हुई है। इसराइल के एक अखबार के हवाले से छपे खबर ने इस वक्त खलीजी ममालिक में हंगामा मचाए रखा है। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान रिश्तों की तलखियाँ ख़त्म होती हुई मालूम होने की बात करते हुए इस वक्त जो है इसराइली मीडिया इस बात को पेश करने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब का नाम लेकर के खलीजी ममालिक में एक अलग ही किस्म का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही है। इसराइली मीडिया से मौसूल हो रही इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार की शब सऊदी अरब का खुफिया दौरा करके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तवील मुलाकात की। इसराइली मीडिया ने यह भी बताया कि नेतन्याहू के साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात की खबर से खलीजी ममालिक में इस वक्त हलचल मची हुई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू और कोहेन सऊदी शहर नियोम पहुंचे, जहां अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पहले से मौजूद थे। ये बात तो नाज़रीन यहाँ के मकामी मीडिया जो सऊदी अरब की है या सरकारी मीडिया कहें, जो हुकूमत की ही बातों को सामने रखती है, खुफिया चीज़ों को नहीं पेश करती यहाँ की मीडिया, वहाँ पर तो साफ तौर पर ये नज़र आ रही है और ये तस्वीरें भी सामने आ गई कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त माइक पोम्पियो सऊदी अरब में है, उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस दरमियान में उन्हीं के मातहत में, उन्हीं की ज़ेरे निगरानी नेतन्याहू से भी मुलाकात हुई है। इस खबर को छुपा दिया गया है। इन सभी के दरमियान खुफिया बातचीत हुई। फिलहाल इसराइल या सऊदी अरब ने नेतन्याहू के सफ़र से मुतालिक ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही इस सिलसिले में कोई पेशरफ देखने को मिलेगी। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि 2 महीने कबल इसराइल ने यूएई और बहरीन से सिफारती ताल्लुकात बहाल किए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान भी सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें होंगी। लेकिन अंदरूनी सतह पर जहाँ तक हम देखेंगे, सऊदी अरब का इसराइल नवाज चेहरा बहुत दिनों पहले ही आ चुका था, बल्कि जब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हाथों बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई और जब से वली अहद बने हैं और तब से लेकर के अभी तक अमेरिका नवाज और इसराइल नवाज ही और उनकी साथ दोस्ती के बहुत सारे अलग अलग चेहरे सामने निकल कर के आ रहे हैं। उसके लिए अलग अलग खाशिक जी का कत्ल हो या बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वली अहद का हाथ होना और फिर इसराइल और अमेरिका का उसका सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें साफ तौर पर जाहिर होता है कि खुफिया तौर पर तो इनके ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिरी शक्ल में ये सारी चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। अब इसराइल के एक अखबार के दावे के बाद एक मरतबा फिर जो है वली अहद सलमान का चेहरा निकल कर के पूरी तरह वाज़ेह होकर के सामने आ गया कि इस वक्त सऊदी अरब इसराइल के साथ दोस्ती चाहता है और जो फ़िलिस्तीनी वहाँ रोज़ाना मर रहे हैं उन पर जो है जलती पर तेल का काम करना चाह रहे हैं वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। इस तरह के तबसरे इस वक्त खलीजी ममालिक में और अलग अलग मुल्कों में हो रहे हैं और बिलखुसूस इसराइल को लेकर के जो ममालिक इस वक्त जो है नहीं चाहते कि जो है वो क़ातिलों के साथ हाथ बढ़ाएं, जो रोज़ाना कत्ल करते हैं फ़िलिस्तीनियों का, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का, वो जो है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इस रवैये से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ आपको, और वो है पुलिस को किस तरह से झटका लगा जब उन्होंने फैज़ान की ज़मानत के ख़िलाफ़ दाखिल अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने दहली फसादात मामले के मुलजिम फैज़ान खान की ज़मानत रद्द करने से मुतालिक अर्ज़ी पीर के रोज़ मुस्तरद कर दी। फैज़ान के ख़िलाफ़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के तलबा को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सिम कार्ड फराहम करवाने के मामले पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ यानी रोकथाम एक्ट UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता माह दिल्ली पुलिस को फैज़ान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी दुश्मनी सामने रखते हुए, अपने अदावत सामने रखते हुए जिस तरह का रवैया वो इस वक्त दिल्ली फसादात में मुसलमानों को लेकर के उसका किरदार सामने आ रहा है, उसी के मद्देनज़र, उसी के असबियत के चलते फैज़ान को ज़मानत पर रिहा करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। याद रहे कि हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता 24 अक्टूबर को फैज़ान को इस बुनियाद पर ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था कि पुलिस के पास मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद ही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि किस तरह यहाँ की पुलिस फैज़ान को परेशान करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आइए अख्तरुल ईमान जो मजलिस के लीडर भी हैं और रुकन असम्बली भी हैं, उन्होंने एक बयान देकर के हंगामा मचा दिया है।
बिहार में आज असेंबली इजलास के पहले दिन अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन इस दौरान AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने कुछ ऐसा किया जिस पर ऐवान में हंगामे का आलम पैदा हो गया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस से असेंबली इंतखाब में फतहयाब हुए अख्तरुल ईमान ने हलफ बर्दारी के दौरान हिंदुस्तान लफ्ज़ पर एतराज़ जाहिर किया और उसकी जगह भारत लफ्ज़ का इस्तेमाल किए जाने की गुजारिश की। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हिंदी ज़बान में भारत के आइन का हलफ लिया जाता है और मैथिली में भी हिंदुस्तान की जगह भारत लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू में हलफ लेने के लिए जो लेटर मुहैया कराया गया है उसमें भारत की जगह हिंदुस्तान लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। अख्तरुल ईमान ने मजीद कहा कि मैं भारत के आइन का हलफ लेना चाहता हूँ, ना कि हिंदुस्तान के आइन का। अख्तरुल ईमान के इस बयान के बाद जनता दल यू और बीजेपी के कई अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी रुकन असेंबली प्रमोद कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुल्क की बदकिस्मती है जहाँ हिंदुस्तान बोलने पर लोगों को एतराज़ है, अवाम ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। कांग्रेस रुकन असेंबली आनंद शंकर ने भी कहा कि हिंदुस्तान लफ्ज़ कहने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस दरमियान जनता दल यू रुकन असेंबली मदन सहनी ने अख्तरुल ईमान के एतराज़ पर उनकी हिमायत में कुछ अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि मजलिस के रुकन असेंबली ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है जिस पर हंगामा हो। उन्होंने मजीद कहा कि 5 ज़बानों में हलफ लेने की सहूलत है, सभी ज़बान में भारत लिखा था लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान लिखा था, जिस पर उन्होंने प्रोटीन स्पीकर से भारत लफ्ज़ का इस्तेमाल करने की गुजारिश की थी। फिर उसके बाद जो हुआ सारी चीज़ें आपके सामने है। तो नाज़रीन, वैसे भी हिंदुस्तान किसी भी बुक में इस तरह बोलते बोलते लोगों के ज़बानों पर आम हो चुका है। बसूरत दीगर जो है असल में हिंदुस्तान का असल नाम तो भारत ही है और हिंदुस्तान किस तरह बना, ये सारी चीज़ें एक तारीख़ है कि जो है सिंध के आसपास में उस वक्त के जो नाम इसको लग गया और बिलखुसूस यहाँ की अक्सरियत को हिंदुस्तान के लफ्ज़ से वैसे भी जो है बैर है और इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने पर आमतौर पर एतराज़ भी जताया जाता है। ऐसी हालत में ज़ाहिर सी बात है, इंसाफ की बात यही है कि हिंदुस्तान की जगह भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, जिसको जो है बाकायदा आइन में जगह दी गई है और कहा जाता है कि भारत के क़वानीन, भारत का कानून, भारत एक जमहूरी मुल्क है। इस तरह के हमेशा से वो चाहे आइनी एतबार से, सरकारी एतबार से जो भी हिंदी में पाई जाती किताबें हैं उसमें भारत का इस्तेमाल अक्सर हुआ है। अगर इसकी आदत डाली जाए तो क्या बुरा है, और अख्तरुल ईमान ने ऐसा कौन सा बुरा कर दिया कि उस पर हंगामा खड़ा हो जाए। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त UAE। जी हाँ, गलती से मुत्तहिदा अरब इमारात के शारजाह इमारात में लैंड कर जाने वाली 68 साला मुसाफिर खातून की शारजा पुलिस ने 4 दिन तक देखभाल करने के बाद उसे इस मुल्क को वापस भेज दिया है। नाज़रीन, इस खबर के बाद आप लोगों को पता चल सकता है कि जो एजेंट्स होते हैं, वो चाहे वीज़ा एजेंट्स हो या टिकट बनाने वाले हो, तमाम लोग नहीं लेकिन मखसूस लोग उसको कमाई का ज़रिया बना लेते हैं और फिर लूट के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से धोखा देते हैं। शारजा पुलिस को तफ्तीश से पता चला कि खातून UAE के हमसाया अरब मुल्क में अपने बेटे से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उसके अपने मुल्क से किसी ने उसके साथ धोखा करके उसे UAE भेज दिया। अल-हमीदिया पुलिस थाने के सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल याहया ने बताया कि मुतासिरा खातून थाने आई और अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताया और शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने उसके लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया और तफ्तीश के मुकम्मल होने तक उसकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखा। जब पुलिस ने खातून के आबाई मुल्क में उसके एक बेटे से रब्ता किया तो उसने बताया कि वो हमसाया मुल्क में अपने बेटे से मिलने जाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ट्रैवल एजेंट से वीज़े और एयर टिकट का इंतज़ाम करवाया था। खातून ने पुलिस को बताया कि जब वो UAE एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसने अपने बेटे से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब इसका अपने बेटे से रब्ता नहीं हो सका तो उसने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा तो वो ये जानकर के हैरान रह गई कि वो उस मुल्क में नहीं है जिस मुल्क में उसका बेटा रहता है। खातून की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके केस को हल करने की कोशिश शुरू की, जिसमें 4 दिन लगे। 4 दिन बाद पुलिस खुद खातून को लेकर एयरपोर्ट आई और उसके मुल्क भी रवाना कर दिया है। इस तरह से यहाँ की पुलिस की जानिब से मदद करने पर जहाँ इस खबर की इस पुलिस की तारीफ़ हो रही है, वहीं पर ट्रैवल एजेंट्स किस तरह धोखा देते हैं कमाने के लिए, और वो भी तनहा खातून को एक ऐसे मुल्क भेज रहे हैं जहाँ उसका कोई अपना शनासा नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग धोखाबाज होते हैं और कमाई के चक्कर में लोग जो है लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ मुख्तसर ख़बरों पर नज़र करूँ। सबसे पहले खलीज बंगाल में 24 घंटे के दरमियान में साइक्लोन यानी कि जो है तूफ़ान आने के अंदेशे ज़ाहिर किए गए हैं,
اور اس کے علاوہ تمل ناڈو اور پڈوچیری کے بھی ساحلی علاقوں میں جو کہ کرائیکل ہے یعنی کہ کیرلا کا علاقہ ہے اور ملاپورم کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی 25 نومبر کو ممکن ہے کہ یہاں طوفان کی شکل و صورت پیدا ہو، یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بے آف بنگال میں یعنی خلیج بنگال میں جو ہے 24 گھنٹے بہت ہی مشکل ہو سکتے ہیں، یہاں بھی جو ہے طوفان کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان علاقوں میں جو ساحلی سمندر پر رہائش پذیر ہیں وہ الرٹ ہو جائیں اور اپنی جگہ محفوظ کر لیں۔ ناظرین آئیے ایک اور کچھ تصویریں رکھوں، اور یہ تصویریں جو آ رہی ہیں وہ کوسوو سے آ رہی ہے، اور لگاتار ترکی مسلم ممالک میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے امداد کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب کوسوو ملک میں اپنی جانب سے یہاں کی ترکی نے ایک اسکول بنا کر کے یہاں کے طلباء کے حوالے کیا ہے، جس میں کلاس رومز، لائبریری اور کمپیوٹر لیب وغیرہ ہے۔ تو ترکی کی جانب سے اس طرح کے ممالک میں جو بالخصوص غریب ممالک کہلائے جاتے ہیں وہاں پر لگاتار تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اسکول اور صحت کے بھی فیلڈ میں مدد کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب یہ تصویر جو آئی ہے وہ کوسوو ملک سے آئی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتی گئی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات